who basically perform the analytics part. Okay, so they are not like uh, they don't do it daily on the daily basis. What they do is after certain days they perform the analytics, they perform the analysis, they generate the information out of the data. Okay, so in data में से information वो निकालते हैं. Okay, so they use the general the query language, they use the SQL which is being provided by the database management software. Using these SQL specifically the query language or the DQL. Okay, so using the DQL and DML, they generate the respective information out of the data, and these information which is being generated out of the data are then used to calculate or then used to produce knowledge. Okay, so using this knowledge you can predict the future, you can predict the or you can build the business strategies, okay, which can be used for getting the higher profit for the different organization. Okay, so ये सब जो करता है, those users are generally called as sophisticated user. So in order to mine the information, in order to mine the knowledge, the sophisticated user should also have the access to the database, and in order to get the access to the database, he has to be a user of a database management system. Okay, so that is why these are the category of the user who are generally falls under the sophisticated user, and they are not a normal person. They are generally in some engineers, they are generally some data scientists. Okay, they are some business analysts, etc. Okay, so they are super professionals. Okay, the last category is called as the super user of database, and they are generally called as the database administrator. Okay, so we have started with the database administrator. Database administrator are one of the super user, and is the super user basically why we call it as a super user, because he is the wholesome user of the database. He generally decide who will be visiting my database, who get the access to the database, etc. Okay, so that is all decided by database administrator. So database administrator is who. So if in a single sentence, if you ask me who is a database administrator is nothing but it is a person, or he's a team who basically monitors the overall database, or that who designs from the schema, from who is present from designing the database at the schema level, and it also uh, checks the regular monitoring, or it performs the regular monitoring of the database. Okay, and plus takes the concern of the security as well. So overall पूरा के पूरे सारी जिम्मेदारी जो है, तो that is being played by the database administrator. So he has the biggest role in the database. So please write down. I think have written the database administrator कौन है? So शायद मेरे ख्याल से have you written down who are the database administrator? Yes. Okay, so just write down the responsibility of a database administrator. Okay, so what are the key responsibility of a database administrator? Okay, just write down the next point, the responsibility of DBA. So what are the questions that can be asked? The question are generally asked for 5 marks, mainly in the first question. Okay, first question में पूछा जाएगा. They write down the question as well. Who is database administrator? Yeah, who is DBA? And what are its role? Okay, so that is the question that they will be asking. Okay, generally यूनिट टेस्ट में भी पूछा जाएगा आपका. ओके, जब भी यूनिट टेस्ट होगा आपका, उसके अलावा जो आपका एग्जाम होता है, ज्यादातर अगर आप पेपर उठा के देखो फर्स्ट मॉड्यूल में से, जो अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें से एक ये जो क्वेश्चन जो है वो बहुत बार पूछा जा चुके हैं. ओके, so write down the key responsibility of the database administrator. The first responsibility of the database administrator, what can you think of? What would be the first responsibility? डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर को की सबसे पहली जिम्मेदारी क्या है? सिक्योरिटी. डायरेक्ट सिक्योरिटी पे कैसे जाएगा? पहले तो ये सॉफ्टवेयर को पहले लेना पड़ेगा ना. सो व्हाट वुड बी द फर्स्ट स्टेप? एवरी टाइम यू वांट टू यूज अ सॉफ्टवेयर, आपको क्या करना पड़ता है सबसे पहले? द फर्स्ट थिंग दैट यू जनरली परफॉर्म whenever you want to use a software is, मैंने आपको उस दिन बताया था DBMS का सॉफ्टवेयर अगर आपको इंस्टॉल करना है तो कैसे करना है. तो व्हाट वाज द फर्स्ट स्टेप दैट वी हैव लर्न? सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन, राइट? पहला काम सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करो, उसके बाद बाकी आगे का काम होगा. So that software installation and maintenance is the first responsibility of a
database administrator. Okay, so if you want to become a database administrator, पहले आपको installation करना आना चाहिए DBMS का. Okay, so a naive user does not इससे पहले आप naive user थे, but you do not know कि actually database कैसे install किया जाता है, क्या है. आपका मकसद ये था कि आपको सिर्फ डेटा चाहिए. तो DBMS का सॉफ्टवेयर से लेना देना दूर दूर तक लेना देना आपका कुछ नहीं था. बट इफ यू आर अ डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, you should know what are the software installation steps, how to maintain it. Okay, so that is the first responsibility. Okay, so write down the first responsibility is the software installation and maintenance. Okay, so what actually happens in that step, क्या होता है उसके अंदर? Basically the database administrator install and configure the different DBMS software that are being available in the market. Okay, then it setups the hardware and display for the respective user. Okay, so हर एक के लिए क्या user को क्या देखना चाहिए, वो पूरा setup जो है, that is done by the database administrator. Okay, so the first responsibility, is it clear to you? Is first responsibility clear to you? Yes, sir. Okay. The second responsibility is called as the database backup and restoring. Okay. The second responsibility is called as the database backup and restoring. Okay. So what is this case? What is database recovery, backup, restoring? What do you mean by this? When we take these backup, what is the requirement of these backup? Why we require the backup copy? Are you able to hear me? To avoid data loss. To avoid data loss, exactly. So basically अगर कोई disaster होता है, okay, if there is a chances or if there is a failure, power failure, something of that sort, okay, so there should be a disaster recovery mechanism. Okay, so when you go to a final year, there would be a subject called as information storage and disaster recovery. Okay, ISDR. Okay, there is a subject called ISDR. उसके अंदर there is a concept of RAID level, RAID. Okay, which is redundant array of inexpensive disk. Okay, so redundant का मतलब Duplication. तो ये डुप्लीकेशन जो वर्ड है, रिडंडेंट जो वर्ड है, ये आपका साथ मतलब सेकेंड ईयर तक ही नहीं है, ये फाइनल ईयर तक चिपका हुआ रहेगा आपके साथ. ओके, सो प्लीज डोंट फॉरगेट दैट वर्ड. सो रिडंडेंट एरे ऑफ एक्सपेंसिव डिस्क का मतलब क्या होता है कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग ओनली वन हार्ड डिस्क, we'll be making a duplicate hard disk. Okay, we'll be making multiple duplicate hard disk. और पूरा का पूरा डेटा जो है मैं एक हार्ड डिस्क पे नहीं करूंगा. हो सकता है मैं एक जो है आधा पार्ट डिस्क पे करूं, आधा पार्ट दूसरे हार्ड डिस्क पे करूं, उसके बाद तीसरे डिस्क पे मैंने दोनों का बैकअप लेके रखा है. तो ये सारा जो प्लानिंग है कि कहाँ पे क्या डेटा होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, there is a different subject that you generally study about it. Okay, so that subject totally deals with कि कभी डिजास्टर हो जाता है तो रिकवरी कैसे करना है. Okay, so the DBA का जो सबसे बड़ा रोल है, that role is the recovery और डिजास्टर रिकवरी मैकेनिज्म जो पार्ट है वो करना, ताकि अगर बाय चांस कभी फ्यूचर में कभी पावर कट हो जाता है या कोई भी तरीके से आपका डेटाबेस फेल हो जाता है, तो जितने भी यूजर हैं, it does not, those user does not get affected by it. Okay, so you should have a proper backup. Okay, you should if there is a power failure, if there is a database failure, during that condition you should be able to restore the previous state or a previous consistent state. Okay, that is very important. The database should always be in the consistent state. Okay, so that consistent state is maintained if you have a proper backup of your data. Okay, so ये जो बैकअप आपका डेटा का होता है, ये either you take it every night, okay, or you generally take it weekly or you take it monthly. It depends on the size of your database. Okay, so अगर आपका database का size ज़्यादा है, so ज़्यादा data है आपके पास, so generally आप क्या करते हो, उसको daily आप हर रात को generally during the night time you start the operation of taking the backup. अगर आप चाहो तो इसको वीकली भी कर सकते हो. अगर आपका जो डेटा है वो कम आ रहा है, कम डेटाबेस में है, यानी हर दिन आपको स्टोर करने की जरूरत नहीं, हर दिन बैकअप लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि नंबर ऑफ यूजर आपके पास कम है, तो आप उसको वीकली कर देते हो. इफ यू हैव और उससे कम है, if the number of users are very less, in that case instead of taking the backup every week,
we perform it on the monthly basis. Okay, so these are called as the backup operation. Okay, and why we require this backup operation? In order to perform the recovery mechanism. Okay, so that is done by database administrator. So the second important responsibility of database administrator is it takes the database backup and performs the recovery. Is it clear? Yes, sir. Okay. So this, if they ask you कि backup कब लिया जाता है, generally backup are of three different type. One is called as a daily, second is weekly, and third is monthly. Okay. So अगर आप WhatsApp पे भी देखते हो, you can take the backup of your WhatsApp either every night. You can take the backup. Okay. Either you can take every weekly or you can take every monthly. So it is it is also applicable in your WhatsApp chat also. Okay. तो ये जनरली अगर आपका बाई चांस मोबाइल टूट जाता है या मोबाइल गिर जाता है, तो अगर आपको दोबारा से अगर नया मोबाइल लेना है, जैसा अभी रिसेंटली मेरे साथ ये हुआ था, माय मोबाइल एक्चुअली फेल डाउन फ्रॉम द थर्ड फ्लोर ऑफ माय बिल्डिंग. सो पूरी तरह से मेरा मोबाइल टूट गया था. तो आई बॉट अ न्यू मोबाइल फोन. सो आई जस्ट नीड टू गेट द रिकवरी ऑफ दैट पर्टिकुलर व्हाट्सएप. सो मेरा ऑटोमेटिकली जो व्हाट्सएप का जो डेटा था वो मुझे मिल गया. तो व्हाट्सएप का आजकल के जमाने में व्हाट्सएप का डेटा मिल जाना यही बहुत बड़ी बात है. ओके, so we have huge data that is generally put into that particular app. Okay, so ये सब possible हो पाता है database administrator की वजह से. Okay, so database administrator has to have it generally keeps the backup. So कभी भी कोई ऐसा disaster हो जाता है, okay, कभी भी कोई physical copy आपकी खराब हो जाती है, hard disk खराब हो जाती है, जल जाती है, अगर आपको नया स्टेट में मतलब उसको वापस से रिस्टोर करना है, रिस्टोर कर पाना तभी पॉसिबल है इफ यू हैव अ प्रॉपर बैकअप ऑफ योर डेटाबेस. So that is the second responsibility. The third responsibility is one of the most important responsibility called as security. Okay, so write down the third responsibility. The third responsibility is called as security. So basically it secure the database. किससे secure करेगा? From the legitimate user or illegitimate user? Whom it will secure? Illegitimate. So the user who are basically illegal, who don't have the access to the database but still trying to use it, so उन सारे user को it will try to avoid it. How you generally avoid from accessing the data? It is generally avoided with the help of a special term called as authorization. Okay, so ऑथराइजेशन का मतलब क्या होता है कि एक प्रॉपर यूजर को ऑथोरिटी है कि नहीं उसको एक्सेस कर पाने की. सो दैट इज बीन डिसाइडेड बाय द डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर. सो इट डिसाइड्स, जैसे कि अगर आप MIS अगर आप ओपन करते हो तो यू हैव गॉट द ऑथोरिटी फॉर ओनली व्यूइंग योर डेटा. ओके, नॉट द फैकल्टी डेटा. सो वो अथॉरिटी कैसे चेक करता है डेटाबेस? That authority is generally checked with the help of a user ID and password. So user ID password आपको प्रोवाइड किया जाता है. So अगर आपका पासवर्ड बाई चांस लीक हो जाता है तो आपका जो सिक्योरिटी है वो चली जाती है आपके डेटा की. सो एनीबडी विल बी एबल टू व्यू योर डेटा. ओके, सो बेसिकली मेरे ख्याल से जब आपको ये ईमेल आईडी मिला होगा, ये कॉलेज का जो ईमेल आईडी मिला है, उसके साथ आपको जो पासवर्ड मिला होगा, दैट वाज आई थिंक एवरीबडी व्हेन दे इनिशियली गॉट द पासवर्ड इट वाज SJCM 2020 आई थिंक. वाज इट SJCM 2020? Yes. या सो अगर बाई चांस किसी ने गेस कर लिया आपका इनिशियल या आपका जीमेल आईडी और बाद में आज भी अगर कोई आपके पासवर्ड में SJCM 2020 डाल के अगर आपने चेंज नहीं किया होगा, सो एवरीबडी इज स्टिल योर सिक्योरिटी इज बेसिकली कैन बी बाईपास्ड. ओके, सो जिसका भी पासवर्ड अगर आज SJCM 2020 है, प्लीज ट्राई टू चेंज योर पासवर्ड. ओके, so nobody can get access to your data. Fine. So that particular thing, that particular responsibility of security, that is being undertaken by database administrator. So what is the responsibility of security? Security may it checks the authority of the different users. So if the user has an authority, then the access will be given to the respective user. Done with that part. Security, is it clear to you? Is security clear? Yes, sir. So, Okay. Okay. The next is it performs the capacity planning. Okay, so the responsibility number 4 is called as capacity planning. Okay, so what do you mean by capacity planning? It checks कि कितना डेटा चाहिए. Okay, कितना डेटा डेली, कितना डेटाबेस में कितना डेटा डेली आ रहा है. Okay,
उसके अलावा कितने नंबर ऑफ यूजर है मेरे पास, ओके। उसके बाद मेरा अवेलेबल स्पेस कितना है हार्ड डिस्क में, ओके। सो ये सारा जो प्लानिंग है कि फ्यूचर में मेरे को अगर डेटा बेस को एक्सटेंड करना पड़े या मेरे को डेटा बेस बिल्ड करने के टाइम पे क्या स्टोरेज होना चाहिए, ये सारा जो मैनेजमेंट है, सारा जो कैपेसिटी का प्लानिंग है, ओके, सच दैट कि आपका सर्वर डाउन ना हो जाए बिकॉज ऑफ द बम्बार्डमेंट ऑफ रिक्वेस्ट दैट इज बीन पुट ऑन टू योर सर्वर, ओके, ऑन द डेटाबेस। सो ये सारा जो आपका डेटाबेस डाउन ना हो जाए because of the respective request that is being put by the different user. So that is being done, that particular identification of the resources कि कितना resource use होना चाहिए. So that all being done by the database administrator. Okay, so it comes under the category called as capacity planning. Okay, so capacity planning में it basically calculate the resources that is been required in order to perform or in order to run your ऑपरेशन स्मूथली। सो ये सारे ऑपरेशन को स्मूथली अगर आपको रन करना है, सो व्हाट आर द मिनिमम और द मॉडरेट रिक्वायरमेंट, सो दैट यू नीड टू हैव दोज मॉडरेट रिक्वायरमेंट, जिससे कि आपका जितने भी ऑपरेशन हो बड़े आराम से स्मूथली तरीके से रन हो जाए। तो अगर आपका एक हार्ड डिस्क है, वो हार्ड डिस्क में अगर मान लो अगर आपका 100 GB का हार्ड डिस्क है जिसके अंदर आप डेटाबेस डेटा को स्टोर करने के लिए यूज कर रहे हो और वो मतलब बहुत जल्दी खत्म हो सकती है, तो उससे क्या होगा कि बाई चांस अगर फ्यूचर में नया यूजर आएगा तो वो आपके हार्ड डिस्क फुल हो जाएगी। सो बेसिकली आपने एक बॉटल नेक डाल दिया आपके एक ऑपरेशन के ऊपर। सो हर टाइम आपको क्या करना पड़ेगा, तो बैकअप लेकर के वो प्रीवियस डेटा को आपको डिलीट करना पड़ेगा या ऐसा कुछ ऑपरेशन आपको करना पड़ेगा। तो या तो दूसरा बेहतर तरीका ये है कि आप अपने रिसोर्सेज को बढ़ा दो। तो रिसोर्सेज को बढ़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको हार्ड डिस्क का कैपेसिटी बढ़ाना पड़ेगा, ओके। सो दोज आर ऑल ऑपरेशन दीज व्हिच इज बीइंग डिसाइडेड एट द डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, ओके। सो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का सिर्फ एक काम नहीं है कि वो डेटाबेस बनाता है, उसका बाकी सारे काम भी होते हैं, ओके। सो दैट वाज कॉल्ड एज द कैपेसिटी प्लानिंग। So capacity planning मतलब it calculates or it plans the different resources that is being allocated to the different user. Is it clear? Capacity planning, is it clear to you? Yes, sir. Okay. Next is role number 5 is the schema designer. Schema designer. Okay. So what do you mean by schema? Schema is nothing but it is a logical representation of database. यानी अगर database को बनाना है तो पहले आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा, पहले आपको ER डायग्राम, पहले आपको रिलेशनल टेबल, ऐसा कुछ एक टेबल बना के एक ब्लूप्रिंट आपको तैयार करना पड़ेगा। उस ब्लूप्रिंट की मदद से आप एक्चुअल डेटाबेस को बना पाओगे, ओके। इट इज जस्ट लाइक सिमिलर टू if you want to build a house, so you need to have a building plan, okay. You need to have a plan that needs to be first built and then you can start building your house, okay. You cannot directly bring the bricks and cement and you can directly start the construction of your house, okay. You should have a proper information, वरना क्या हो जाएगा कि आपका जो प्रॉपर स्ट्रक्चर है वो प्रॉपरली बन नहीं पाएगा, ओके। सो यू शुड हैव अ प्रॉपर नॉलेज कि आप बनाना ही चाह रहे हो, ओके। So that structure, that defining of the blueprint is done by the database administrator, okay. So he is the basic is the founder person who basically creates a database, okay. So that is the most important role of database administrator. So schema design जो है that is done by the database administrator. Is it clear? Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Next responsibility is the troubleshooting. Okay. Next responsibility is called as troubleshooting. So what do you mean by troubleshooting? Can you tell me what is troubleshooting? नाम में सब कुछ है उसमें. What is troubleshooting? Problem data. ओके या सो बेसिकली अगर ट्रबल का मतलब बेसिकली अगर कोई आपका प्रॉब्लम आ रहा है, ओके, अगर कोई भी यूजर को या कोई भी डिफरेंट यूजर को, फॉर एग्जांपल अगर आपको आज MIS यूज कर रहे हो और आपका MIS में आपको ऐसा लग रहा है कि आपका अटेंडेंस दिखा नहीं रहा है, तो सबसे पहले आप क्या करते हो, आप अपने फैकल्टी को बोलते हो। तो फैकल्टी क्या करेगा, उसको भी पता नहीं है कि कहाँ पे क्या स्टोर है, वो तो वो भी एक टाइप का यूजर ही है।
सो फैकल्टी क्या करेगा, जनरली अगर मेरे पास ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है कि सर मेरा अटेंडेंस नहीं दिख रहा है या ये नहीं दिख रहा है, तो आई जनरली कॉल टू दी साइबर डिपार्टमेंट और वहाँ पे गौतम सर को कॉल लगा के मैं बोलता हूँ कि सर ऐसा प्रॉब्लम है, प्लीज लुक इनटू दिस मैटर। सो गौतम सर विल गो, ही विल चेक आपका आईडी और यूजर पासवर्ड लेकर के कि आपको अथॉरिटी है कि नहीं, या आपका कोई रोल शायद चेंज हो गया होगा गलती से, तो ही जस्ट चेक इट आउट। और उसके अंदर अगर कोई रोल उनको ऐसा मिलता है जहाँ पे आपको नहीं डिफाइन किया गया है, तो फिर आपको रीडिफाइन किया जाता है आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड रोल्स को। ओके, सो वो आप फिर आराम से फिर उस चीज को कर सकते हो। सो ये जो ट्रबल शूटिंग है, यानी आपको कोई भी प्रॉब्लम कोई भी यूजर के पे अगर मिल रहा है, उस प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है जनरली उसको सॉल्व करने की जिम्मेदारी डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की होती है। सो दैट इज कॉल्ड एज ट्रबल शूटिंग। सो फ्यूचर में व्हेन दिस इज अगेन अ लिटिल बिट डेविएशन फ्रॉम द टॉपिक, थोड़ा टॉपिक से डेविएट कर रहा हूँ मैं। फ्यूचर में व्हेन यू जॉइन अ कंपनी, राइट, सो कंपनी में जब आप ज्वाइन करते हो, सो देयर आर लाइक दो बेसिस पे कंपनी को डिवाइड करते हैं। वन इज कॉल्ड एज अ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी एंड सेकंड वन इज कॉल्ड एज अ सर्विस बेस्ड कंपनी। ओके, सो एक कंपनी जो होती है वो प्रोडक्ट बनाती है और एक जो कंपनी है वो सर्विस प्रोवाइड करती है। ओके, सो फॉर एग्जांपल Capgemini या Accenture की बात कर लो। ओके, सो these are the company who basically provides this service. Okay, they have already made the product और ये प्रोडक्ट को उन्होंने लोगों को बेच दिया है। ओके, अगर उस प्रोडक्ट में कुछ प्रॉब्लम आती है, अगर ट्रबल शूटिंग करना पड़ता है, तो ये ट्रबल शूटिंग की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसी को ट्रबल आ रहा है उसको शूट करना है, उसको रिमूव करना है, so that is done at these particular companies. So Capgemini, Accenture, जो जितने भी मल्टीनेशनल कंपनीज है, these are all called as service based company. They provide services. Okay, एक दूसरी कंपनी है जो एक्चुअल प्रोडक्ट बनाती है। ओके, सो जैसे कि आपकी रॉ इंजीनियरिंग जो आपके कॉलेज में आती है, द कंपनी कॉल्ड एज रॉ इंजीनियरिंग, देन Funtech, then 3i Infotech. 3i Infotech is basically ICICI का जो सॉफ्टवेयर बनाती है, that is called as 3i. So ICICI में 3 जो I है, उसके नाम से एक कंपनी है called as 3i Infotech. तो 3i Infotech में वो they make products for the different banks. Okay, फिर सिटी बैंक का वैसे होता है। सिटी बैंक के लिए देयर इज अ कंपनी कॉल्ड एज Funtech. देन फॉर डच बैंक के लिए देयर इज अनदर कंपनी कॉल्ड Dutch Tech. Okay, so every company, every प्रोडक्ट, बेसिकली एवरी बैंक हैज देयर डिफरेंट प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। हर एक कंपनी का भी जो सॉफ्टवेयर बनता है उनके लिए भी एक अलग सेट ऑफ कंपनीज होती है, उनकी टेक्नोलॉजिकल कंपनी होती है। सो दे व्हाट दे डू इज दे जनरली मेक देयर ओन प्रोडक्ट। ओके, वो प्रोडक्ट बनाती है और उसको अपडेट करती है, फिर नया कोई सिक्योरिटी पैच बनाती है जिससे और सिक्योरिटी आपका बेहतर होते चले जाए फ्यूचर में। ओके, सो कंपनी को कभी भी अगर आप देखोगे हमेशा दो कैटेगरी में डिवाइड होती है। वन इज कॉल्ड एज अ सर्विस बेस्ड कंपनी एंड सेकंड इज कॉल्ड एज अ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। सो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में प्रोडक्ट बनाना मकसद होता है, सर्विस बेस्ड कंपनी में सिर्फ और सिर्फ ट्रबल शूटिंग का काम होता है। ओके, सो फ्यूचर में इफ यू वांट टू जॉइन अ कंपनी, ज्यादा सीखने को मौका जो होता है आपका वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में मिलता है कंपेयर टू द सर्विस बेस्ड कंपनी। ओके, सो जस्ट रिमेंबर दिस वर्ड कि फ्यूचर में अगर बाय चांस कभी आपको डिसाइड करने का मौका मिले, अगर आपके पास मल्टीपल ऑफर लेटर हो और जो होते हैं जनरली, तो उस केस में अगर आपको डिसीजन लेना हो, सो प्लीज ट्राई टू प्रेफर अ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी rather than a सर्विस बेस्ड कंपनी। हाँ, अगर आपका मकसद ये है कि अगर आपको दुनिया घूमनी है, बाहर के देशों में जाना है, इन दैट केस यू कैन चूज अ सर्विस बेस्ड कंपनी। तो अगर कोई भी आपका क्लाइंट जो जर्मनी में है या कोई भी क्लाइंट जो आपका यूएस में है, उस बंदे का अगर ट्रबल शूटिंग करना है तो आपको जर्मनी या यूएस भेजा जाता है। ओके, सो जनरली जो आपके फ्रेंड या आपके रिश्तेदार जो बाहर जो इस वक्त घूम रहे, दे आर जनरली द पीपल हु आर जनरली वर्किंग इन द सर्विस बेस्ड कंपनी। इज इट क्लियर? Yes, sir. So the troubleshooting part was nothing Yes, but sir. अगर किसी यूजर को कोई ट्रबल आता है, so that trouble is avoided or that trouble is solved by the database administrator. So one of the key responsibility of a database administrator is he is a troubleshooter. Okay, then the next responsibility of the database administrator is it checks or it monitors the performance. Okay, so write down the next responsibility. I think the responsibility number 7. Is it 7? Yes, sir. Okay. Yeah. So, yeah. So seventh responsibility is it performs the or it monitors the performance. Okay. So write down performance monitoring.
responsibility number 7 is performance monitoring. So performance monitoring का मतलब it checks the different bottlenecks. So कहीं पे भी अगर उसको ऐसा लगेगा कि bottleneck आ रहा है, so उस bottleneck को avoid करने की कोशिश करता है. Okay, so bottleneck किस किस केस में आ सकता है? अगर डेटाबेस का जो स्टोरेज है वो कम पड़ रहा है तो उसका ध्यान रखने की कोशिश करता है. अगर नेटवर्क का प्रॉब्लम आ रहा है, ओके, सो फॉर एग्जांपल if you're trying to connect your database server with the help of 2.4 gigahertz, okay, so वो 2.4 गीगाहर्ट्ज के बैंड से अगर आप कनेक्ट करोगे तो आपको जो डेटा है वो ज्यादा फास्ट स्पीड में नहीं मिलेगा, ओके, और उसके अंदर बहुत ज्यादा कंजेशन होगा उस पर्टिकुलर बैंड में. देयर इज अनदर बैंड कॉल्ड एज 5 गीगाहर्ट्ज. सो ये क्या है, तो अगर आपको पता होगा, अगर इफ यू जनरली बाय सम routers generally work in these two different frequency. One is called as a 2.4 gigahertz and other is called as a 5 gigahertz. या अगर आप मोबाइल में जो हॉटस्पॉट बनाते हो, when you create the hotspot, it gives you a feature of creating a hotspot at two different frequency. One is called as a 2.4 gigahertz and the second one is called as a 5 gigahertz. Okay, ये दो बैंड पे आप अपना नेटवर्क बनाते हो. ओके, सो 2.4 पे जनरली ज्यादातर कंपोनेंट्स, ओके, आपके जितने भी कंपोनेंट जो वायरलेसली कम्युनिकेट करते हैं, दे ऑल वर्क एट द 2.4 गीगाहर्ट्ज. सो ज्यादातर जितने भी डिवाइस जिसमें वाईफाई होगा या जिसमें भी ब्लूटूथ होगा, जिसमें वायरलेस कम्युनिकेशन हो रहा है, दैट इज ऑल डन एट द 2.4 गीगाहर्ट्ज के रेंज पे. तो उस पे कंजेशन ज्यादा होगा या कम होगा 2.4 गीगाहर्ट्ज पे? ज्यादा होगा, क्योंकि ज्यादातर आपके घर में जितने भी लोग हैं या जो भी मोबाइल यूज कर रहे हैं या रास्ते चलते चलते जितने भी लोग वाईफाई यूज करेंगे, ज्यादातर लोग 2.4 गीगाहर्ट्ज यूज ही करते हैं. ओके, सो आप क्या करते हो जनरली, जितने भी मॉडर्न जो आपके वाईफाई होते हैं या राउटर आप खरीदते हो आजकल के जमाने में, जिसकी प्राइस 10,000 के ऊपर होती है, उसके अंदर हमेशा चेक करना, देयर इज अ टर्म दैट इज बीन यूज्ड कॉल्ड एज अ डुअल बैंड. ओके, डुअल बैंड का मतलब क्या है कि इट डज नॉट ओनली सपोर्ट 2.4 गीगाहर्ट्ज, इट आल्सो सपोर्ट्स द हायर फ्रीक्वेंसी व्हिच इज कॉल्ड एज 5 गीगाहर्ट्ज. सो 5 गीगाहर्ट्ज में क्या होता है कि आपका जो स्पेक्ट्रम है वो ऊपर वाले लेवल का स्पेक्ट्रम होता है. उससे क्या होता है कि कम से कम यूजर, जनरली बहुत बहुत ही कम यूजर होते हैं उस बैंड पे. उससे क्या होता है कि देयर इज अ लेस कंजेशन प्रेजेंट इन द ट्रैफिक, क्योंकि ज्यादातर जो कंजेशन है, ज्यादातर तो जो ट्रैफिक है वो 2.4 गीगाहर्ट्ज पे है. ओके, सो हम क्या करते हैं कि एक बाईपास करने की कोशिश करते हैं विद द सेकंड फ्रीक्वेंसी कॉल्ड एज 5 गीगाहर्ट्ज. तो कम यूजर होने की वजह से आपका डेटा बहुत स्पीड में आपको एक्सेस करने के लिए मिलता है. इट इज जस्ट लाइक कि एक हाईवे है और एक सेकंड ब्रांच है या दो रोड है, एक रोड पे कम ट्रैफिक है, एक रोड पे ज्यादा ट्रैफिक है. ओके, सो ये अपॉर्चुनिटी तभी मिलती है जब आप एक हाई एंड का राउटर खरीदो. ओके, सो ये सब जो प्लानिंग है कि ये परफॉर्मेंस का जो प्लानिंग है कि आपका परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छा चाहिए, खराब चाहिए या मॉडरेट चाहिए या यूजर के रिक्वायरमेंट पे, ये सब जो मॉनिटरिंग है, ये सब करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की. सो अगर उसको लगता है कि यूजर बहुत ज्यादा आ रहे हैं उसके सर्वर को यूज करने के लिए, तो इट विल यूज नेटवर्क कंपोनेंट के अंदर इट वुड यूज राउटर व्हिच हैज और व्हिच प्रोवाइड्स और व्हिच वर्क्स ऑन दी 5 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी. तो यानी नेटवर्किंग कंपोनेंट के अंदर वो 5 गीगाहर्ट्ज का सपोर्ट भी रखेगा साथ में. आई थिंक इट इज क्लियर टू यू. इज इट क्लियर? Yes, sir. Okay. Yes, sir. The last role Yes, of sir. database Yes, sir. administrator is it performs the operation called as extraction, transformation, and loading. Write down. It performs the operation called as extraction, transformation, and loading. Okay. Extraction, transformation, and loading. Okay, and in bracket write down optional. Okay, this particular point is actually is optional part. It is database administrator की जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन ये एक ऑपरेशन भी वो कर सकता है. ओके, जनरली जो एक्सट्रैक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन, लोडिंग का जो पार्ट है, इट इज जनरली डन बाय द सोफिस्टिकेटेड यूजर. यानी आपको इंफॉर्मेशन निकालना है, अगर मान लो, तो आपको ये स्टेप करने पड़ते हैं. ओके, इन ऑर्डर टू माइन द इंफॉर्मेशन, डेटा से इंफॉर्मेशन अगर आपको माइन करना है, उसके लिए 3 स्टेप होते हैं. वो 3 इंपॉर्टेंट स्टेप व्हिच इज कॉल्ड एज, शॉर्ट फॉर्म में बोला जाए तो इट इज कॉल्ड एज ETL प्रोसेस. ओके, सो ETL का फुल फॉर्म क्या है? एक्सट्रैक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड लोडिंग. तो ये जो प्रोसेस है दैट जब आप जाओगे तो ETL के ऊपर पूरा एक मॉड्यूल बना हुआ है. ओके,
अभी फिलहाल क्या है एग्जैक्टली वो मैं बताने की कोशिश करता हूँ। जब हम यूजर जब डेटा डालता है, ओके, सो व्हेन द यूजर पुट्स डेटा, सो हो सकता है कि कुछ इंटरफेस पे डेटा जो है आपका वो अमेरिकन फॉर्मेट में हो, या इंडिया में जो है वो इंडियन फॉर्मेट के हिसाब से डेट को डालने का ऑप्शन हो, यानी इंडियन इंडियन के हिसाब से द डेट जनरली स्टार्ट फ्रॉम द मंथ, देन वी हैव सॉरी इट स्टार्ट विद द डे, then the month, then the year. Okay, if you follow the American user interface, उसके अंदर पहले आपका ईयर होता है, देन इट हैज द मंथ, एंड देन इट हैज अ डेट। ओके, सो हर एक का कंट्री का अलग अलग फॉर्मेट होता है। ओके, सो अगर आपने बाय चांस या यूके के अंदर पहले मंथ होता है, फिर डे होता है, फिर ईयर होता है, सो अगर आप यूके का फॉर्मेट से इफ यू कॉपी द डेटा और इंडिया के फॉर्मेट से अगर आप कॉपी करते हो डेटा, सो द डिफरेंस इज कि इंडिया में पहला डे आता है और यूएस में यूके में पहला मंथ आता है। अगर मैंने गलती से लेट्स से मैंने 5th ऑफ अगस्त मुझे डेट देना है, ओके, या आज का डेट इज 8th ऑफ अगस्त, ओके, द आयरनी इज आज 8th ऑफ अगस्त है, तो आज के डेट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बिकॉज टुडे द मंथ एंड द डे इज बोथ सेम, राइट? बराबर ना? दैट कैन बी इंटरचेंज, इट डज नॉट हैव एनी प्रॉब्लम। बट अगर बाई चांस किसी दिन ऐसा होता है कि आपका डे अलग है और मंथ अलग है, और वो कॉलम अगर आपने स्विच कर दिया, तो आपका जो डेटाबेस में जो एंट्री होगी वो गलत हो जाएगी। ये जो ऑपरेशन है कि जो एक्सट्रैक्ट जब आप डेटा करते हो, जब आप स्टोर करते हो, स्टोर करने के टाइम पे आपको प्रॉपरली ध्यान रखते हुए कि हर एक का फॉर्मेट अलग अलग हो सकता है। ये जो है आपका ध्यान रखना है कि यूएस से जब आपको डेटा कॉपी करना है तो उसका फॉर्मेट आपको चेंज करना है, इंडिया से डेटा कॉपी करना है उसका फॉर्मेट चेंज करना है, और यूके से अगर आपको डेटा करना है तो उसका फॉर्मेट आपको चेंज करना है। तो ये सब जो ध्यान रखना है, दैट इज डन बाय द डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। इज इट क्लियर? So what we do, the first step we extract it, यानी extract कर सकते हैं information। Second step में अगर उस डेटा के अंदर कुछ गड़बड़ होती है, we perform the ट्रांसफॉर्मेशन, यानी आप क्या करते हो कि एक ही फॉर्मेट को आप फॉलो करते हो। सो फर्स्ट इज जनरली द डे, second is generally the month, and the third one is generally called the year. Okay, and then we load that thing into our database. Okay, so that is called as extraction, transformation and loading। तो 3 स्टेप का प्रोसेस है। एक्सट्रैक्ट यानी कहाँ से आप डेटा ले रहे हो, ट्रांसफॉर्मेशन मतलब अगर बाई चांस उसके अंदर कोई गड़बड़ आती है, वो गड़बड़ को आप सॉल्व करते हो, एंड देन फाइनली यू लोड इट इनटू योर सिस्टम। Is it clear? So that step is done by the database administrator. Is it clear? Yes, sir. Okay. So the important features generally that is or the key responsibility that is being defined by the database administrator are, सबसे पहले तो उसको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने आना चाहिए, उसको मेंटेनेंस करने आना चाहिए। So that is the first key responsibility। Second responsibility यानी डेटाबेस का बैकअप लेते रहना चाहिए, उसको रिस्टोर करना चाहिए टाइम टू टाइम। अगर बाई चांस कभी पावर फेलियर हो जाता है या डेटाबेस फेल हो जाता है किसी सिचुएशन में, तो बिना बैकअप के आप उसको रिस्टोर नहीं कर सकते। सो इन ऑर्डर टू परफॉर्म द रिस्टोरिंग यू शुड हैव अ प्रॉपर बैकअप ऑफ इट। ओके, द थर्ड रिस्पांसिबिलिटी वाज द सिक्योरिटी। सो अगर डेटा अगर आपका सिक्योर नहीं है तो फिर डीबीएमएस का फिर जरूरत क्या है, उससे बेटर ये है कि आप ओपन ही डेटा को रख लो। ओके, so yeah, so security provides you security. So how it provides the security? With the help of security mechanism such as called as authorization. So if a user is authorized user, उसको access मिलेगा। If it is not an authorized user, that particular user will not get the access। Okay, so that is called as security। The third is basically the capacity planning। So capacity planning मतलब जितने भी resource लगने हैं, उस resources का जो planning है, that is done at the capacity planning। resources का मतलब क्या है, आपके हार्ड डिस्क से लेके, आपके प्रोसेसर से लेके, आपके नेटवर्क से लेके, हर एक का कि क्या से क्या आपको परफॉर्मेंस देना है। यानी अगर आपको ज्यादा यूजर लगेंगे तो आपको हाई एंड का प्रोसेसर लगेगा, आपको ज्यादा यूजर है तो आपको ज्यादा स्टोरेज कैपेसिटी लगेगा, अगर आपके ज्यादा यूजर है तो आपको 5 गीगाहर्ट्ज पे या 2.4 गीगाहर्ट्ज में। ये सब आपको डिसाइड जो करना है, दैट इज डन बाय द डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। देन ही इज द ओवरऑल स्कीमा डिजाइनर। ओके, सो स्कीमा डिजाइन भी कौन करता है? आपका डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। देन देयर इज ट्रबल शूटिंग। सो ट्रबल शूटिंग का मतलब क्या है कि अगर जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है, अगर यूजर को कोई ट्रबल आता है, उस ट्रबल को अवॉइड करना है, यानी उस ट्रबल को सॉल्व करने की जिम्मेदारी डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की है। देन उसके बाद और कौन सा रह गया था?
और कुछ है? या परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग, यानी अगर कोई भी Performance आपका monitor. डेटाबेस कहीं पे भी बॉटलनेक अगर हो रहा है, यानी हार्ड डिस्क एंड पे जो भी आपने बेसिकली कैपेसिटी प्लानिंग पे जो कैपेसिटी आपने प्लान किया था, वो प्लान अगर आपका बाय चांस फेल हो रहा है किसी वजह से, तो वो परफॉर्मेंस, उनके परफॉर्मेंस का जो मॉनिटरिंग है वो जिम्मेदारी डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की। तो अगर बाय चांस उसको लग रहा है कि उसकी कैपेसिटी या प्लानिंग में कुछ फेलियर हो गया था, उस फेलियर को वो अभी इस चीज पे परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग में वो चेक करता है। अगर लगता है कि यहाँ पे फेल हो रहा है तो उसको चेंज करने की कोशिश करता है या उसको सुधारने की कोशिश करता है, ताकि आपका परफॉर्मेंस बेटर से बेटर हो सके। And then finally we have got the extraction, transformation, loading. Okay, so ETL में बेसिकली क्या होता है कि जो भी आपका डेटा है वो डेटा एक फॉर्मेट में होना चाहिए, ये जिम्मेदारी रखने की डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की है। सो जनरली कोई कोई देश में जो ईयर है वो आप जनरली लास्ट के 2 डिजिट को रखते हो। ओके, सो विच इज जनरली राइट डाउन, जैसे आजकल के टाइम पे 20 भी राइट डाउन 20 या उससे पहले 19 या फ्यूचर में 21 लिखा जाएगा, लेकिन कुछ कुछ उसको 4 डिजिट में रखते हैं। सो 2020 या 2021 या 2019 इस फॉर्मेट में रखते हैं। ओके, सो इट डिपेंड्स टू दी एप्लीकेशन प्रोग्रामर, वो एप्लीकेशन प्रोग्रामर ने कैसा डेटा मांगा है यूजर से। सो अगर उस हिसाब से अगर डेटा आप एप्लीकेशन प्रोग्रामर के हिसाब से करोगे तो डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन प्रोग्रामर ने डिफरेंट डिफरेंट यूजर इंटरफेस बनाया होगा। So सबका data should be common. Okay, so that commonness is provided by a database administrator. So while extracting those information, it checks if it follows the common format. If it does not follows the common format, it will try to transform it. और as soon as it transform it, सब transform हो चुका है, तब वो जाकर के database के अंदर load करेगा. So that is all done by the database administrator. Is it clear? Is the key Yes, sir. responsibility clear to you? Okay, so those were Yes, the sir. different responsibilities, or those were the different types of user that I want to show to you. Next is we'll be looking at the next diagram. Okay, so write down the next topic, and the last topic of this module is called as the database management system. Yeah, DBMS system architecture. Okay, write down DBMS system architecture. या उसको आप बोल सकते हो सिस्टम इंटरनल्स। राइट डाउन डीबीएमएस सिस्टम आर्किटेक्चर और सिस्टम इंटरनल्स। ओके, आफ्टर राइटिंग इट यू नीड टू ड्रॉ दिस डायग्राम। ओके, अभी फिलहाल आपको या तो मैं स्लाइड प्रोवाइड कर दूंगा आपको, आप अगर आप ड्रॉ नहीं कर सकते या अगर आप ड्रॉ कर रहे हो साथ में तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि वो साथ में आपको फिर याद भी होता रहेगा। ओके, सो एज वी लुक एट द डायग्राम वी स्टार्ट विद द डिफरेंट यूजर्स। सो अगर आप पहले उस पे स्टार्टिंग का जो डायग्राम आप देख रहे हो, सो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ यूजर वी हैव? फर्स्ट वी हैव द नाइव यूजर, सेकंड वी हैव द एप्लीकेशन प्रोग्रामर, third we have sophisticated user, and then we have the database administrator. Okay, so these are the different users that is being supported by DBMS. Okay, so ये सब हमने देख लिया। Okay, naive user अगर उनको डेटाबेस यूज करना है, अगर आप देख पाओगे जो सबसे पहले आपका है, okay, in the starting we have a user. Okay, in the starting we have a user, in the end we have the disk. Okay, storage disk है हमारे पास। Okay, सो इन दोनों के बीच का जो इंटरफेसिंग है, इन दोनों के बीच में यानी यूजर और डिस्क के बीच का जो इंटरफेसिंग है, दैट इंटरफेसिंग इज प्रोवाइडेड बाय अ सॉफ्टवेयर कॉल्ड एज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. सो डीबीएमएस इज बेसिकली इज नथिंग बट इट इज अ सॉफ्टवेयर which provide the interface between the user and the disk. Okay, इनके बीच का इंटरफेस है. So ये जो आर्किटेक्चर आप पढ़ने आओगे वो बीच का आर्किटेक्चर आप पढ़ने आओगे which is about the database management system. यानी database management system का एक्चुअल आर्किटेक्चर क्या है, वो अंदर से दिखता कैसे. So एक यूजर जो है, नाइव यूजर जो है, ओके, यानी कोई भी एक यूजर, आम सा यूजर जैसे कि टेलर हो गया, एजेंट हो गया या वेब यूजर हो गया, वो स्टोरेज को यानी वो डिस्क को कैसे एक्सेस कर पाएगा. सो अगर आपको जीमेल एक्सेस करना है तो आप जीमेल को एक्सेस कैसे कर पाते हो? विद द हेल्प ऑफ सम इंटरफेस. यू यूज सम इंटरफेस, एप्लीकेशन इंटरफेस आप यूज करते हो, वेब इंटरफेस बोलो या एप्लीकेशन इंटरफेस बोलो, तो आप लिखते हो www.gmail.co.in और आप एंटर करते हो तो आपको एक जीमेल का इंटरफेस ओपन होकर के मिलता है, या आपको क्रोम पे मिले या किसी पे भी मिले, तो आपको वहाँ पे यूजर आईडी और पासवर्ड वहाँ पे डालना पड़ता है. सो दैट इज नथिंग बट इट इज कॉल्ड एज एप्लीकेशन इंटरफेस. ओके, सो नाइव यूजर जनरली यूजेस द एप्लीकेशन इंटरफेस. इज द फर्स्ट पॉइंट क्लियर टू यू?
Yes, sir. Yes, sir. In the second we have the application programmer. Application programmer क्या करते हैं? They don't use but they write the application program. Application program लिखते हैं वो. What is application program? Application program is nothing but it is again the interface which naive user uses. जो application interface जो naive user use कर रहे हैं उसके लिए जो program लिखा जाता है उस program को application program बोला जाता है. Okay, so अगर आपका जो web page है Gmail का वो किसी ने design किया होगा, वो किसी ने program किया होगा. So the person who has designed the web page, the person who has made that software, that person will be come under the category called as application programmer. So ये write कैसे करेंगे? How will they write the program? With the help of some programming language. So programming language क्या क्या हो सकता है? It can be C, it can be Java, etc. Okay. So these are the different programming language that our application programmer generally uses. Okay. So application programmer application program को लिख के और फिर ये एप्लीकेशन प्रोग्राम होगा तो फिर वो इंटरफेस में तब्दील किया जा सकता है. ओके, और फिर ये इंटरफेस जो है वो आपके नाइव यूजर उसको यूज करके अपने डेटाबेस को एक्सेस कर पाएंगे. So that was the second category. The third category of the user was called as a sophisticated user. Sophisticated user basically क्या करते हैं? They perform they mine the information. यानी डेटा में से इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करते हैं. Okay, यानी IT डिपार्टमेंट में कितनी लड़कियां हैं, कितने लड़के हैं, उनका अटेंडेंस क्या है. Okay, so अगर किसी को ये निकालना है रिजल्ट, जनरली when you find out कि 10th में लड़के आगे थे या लड़कियां आगे थी, तो ये इन्फॉर्मेशन है, राइट. सो एवरी टाइम यू गेट दिस इन्फॉर्मेशन एंड बाय इन फ्यूचर इफ आई आस्क यू 2021 में या 2020 या 22 में किसका मार्क्स ज्यादा होगा, लड़कों का या लड़कियों का? सो नेचुरली आपका आंसर लड़कियां ही होगा, बिकॉज एवरी टाइम every year and year after they are the flag bearer or the highest scorer in the SSC as well as HSC. Yeah, if you take the example of AISSC या CBSE board का, so every time they are the scorers. Okay, so ये information कहाँ से है? These information came from या जो पेपर में आप देखते हो कि लड़कियों ने इतने परसेंट स्कोर किया है, so these all came from the database of the HSC board या महाराष्ट्र बोर्ड या CBSE बोर्ड, उन database से information आई है. Okay, so ये जो information है वो कैसे मिली? With the help of some query tools. Okay, so ये जो query tools का मतलब क्या होता है? जो आप DBMS ओपन करोगे उसके अंदर जो query लिखते हो, जो हमने लास्ट टाइम ओपन करके देखा था, और ये आप बेसिकली पूरे सेमेस्टर में जो आपका लैब होगा उस लैब में आप यही क्वेरी लिखना सीखोगे. ओके, सो यू विल बिकम सोफिस्टिकेटेड यूजर बाय द एंड ऑफ दिस सेमेस्टर. यू विल आल्सो बिकम एन एप्लीकेशन प्रोग्रामर बिकॉज यू आर लर्निंग जावा प्रोग्रामिंग इन ऑर्डर टू बिल्ड द फ्रंट एंड. ओके, सो यू विल आल्सो बाय द वे यू आर राइट नाउ यू आर अ नाइव यूजर. ओके, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर कब बनोगे? डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर तब बनोगे जब आप बेसिकली डेटाबेस को इंस्टॉल करना सीख लोगे, साथ में उसका ट्रबल शूटिंग होगा. ये सब कुछ आप ये सारे के सारे यूजर के थ्रू आप गुजरोगे इस पर्टिकुलर सेमेस्टर में. ओके, सो सोफिस्टिकेटेड यूजर मतलब उस यूजर को बोलते हैं जो क्वेरी टूल्स यूज करके आपको कुछ इंफॉर्मेशन निकाल के दे. ओके, तो क्वेरी टूल्स का मतलब क्या होगा? इट कैन DML क्वेरी या DCL क्वेरी या DQL क्वेरी, ये सब लिखने का उसको ऑप्शन है. सो it uses the query tool. Next we have the database administrator. Database administrator who design the overall schema, who performs the security mechanism. Okay, सब जो करना है that is done by the database administrator. So in order to do such certain activity, it uses the administration tool. So उसके पास नया tool होता है, उसको बोलते हैं administration tool. So हर एक का जो इंटरफेस है या हर एक क्या क्या टूल यूज करते हैं, ये सब समझ में आ गया आपको? Is it clear to you? Yes, sir. Okay. Yes, sir. So अगर आप एक नाइव यूजर हो, अगर आप फेसबुक यूज करते हो तो आप क्या यूज करते हो? डू यू यूज क्वेरी टूल्स इन ऑर्डर टू एक्सेस द डेटाबेस, या आप वेब पेज यूज करते हो? व्हाट डू यू यूज फेसबुक यूज करने के लिए? वेब पेज. सो वेब पेज को अगर आप यूज करते हो तो बेसिकली यू गेट द एप्लीकेशन इंटरफेस. एप्लीकेशन इंटरफेस आपको मिलता है और एप्लीकेशन इंटरफेस पे आप अपने यूजर आईडी पासवर्ड डाल दो, तब जाके आप डेटाबेस को एक्सेस कर पाते हो. ये जो इंटरफेस जिसने बनाया होगा, दोस पर्सन विल बी कॉल्ड एज द एप्लीकेशन प्रोग्रामर. तो उन्होंने प्रोग्राम लिखा होगा. ओके, सो आइदर PHP में प्रोग्राम लिखा होगा उन्होंने. सो PHP का प्रोग्राम जो है वो आप फिर यूज करके आप रन करके उसको फिर आप देखते हो. So such type of called as application programmer. Third category are the called as the user who basically perform the analysis part. So analysis तभी possible है जब आपको query करने आती हो. So query करने के लिए you should have a proper query tools. Okay, so आपको DBMS के अंदर जो software support है which is called as a query management या query organization.
ओके सो ये सारा जो है ये करना तभी पॉसिबल है जब आपके पास क्वेरी टूल्स है. ओके सो इट शुड हैव अ प्रॉपर सपोर्ट ऑफ एसक्यूएल क्वेरीज. ओके सो एसक्यूएल क्वेरी की मदद से आप डेटा से इंफॉर्मेशन को माइन कर सकते हो. एंड देन वी हैव गॉट अ डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर. Database administrator is nothing but it is a person who basically performs the overall the super user of the database. So सिक्योरिटी से लेके स्कीमा डिजाइन से लेके परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग से लेके हर एक काम की जिम्मेदारी उसकी है. तो ये सब पॉसिबल कैसे विद द हेल्प ऑफ सम एडमिनिस्ट्रेशन टूल. ओके सो ये एडमिनिस्ट्रेशन टूल को यूज करके ही कैन परफॉर्म द रिस्पेक्टेड टास्क. Okay, so that is all the different user and what are the different tools that they use in order to get the access to the database. Okay, so अभी तक हमने database actually start नहीं किया. अभी तक हमने database management system को अभी तक define नहीं किया. database engine जो है या database management system जो है उसके अंदर 3 part होता है. Okay, so DBMS has basically 3 parts. The first part is called as the query processor. Okay, the first one is called as a query processor. The second part is called as transaction processor or transaction manager बोल लो. Transaction, sorry my writing is bad over here. Transaction manager. And the third one is called as the disk storage, sorry, or storage manager. Storage manager. ओके सो 3 बेसिकली पार्ट होता है. ओके जिस पे आपको ज्यादा फोकस करना है, जिस पे ज्यादा आपको एलॉबरेट करना है. ओके तो स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट व्हिच इज कॉल्ड एज द क्वेरी प्रोसेसर. सो अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो द फर्स्ट पार्ट ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज कॉल्ड एज अ क्वेरी प्रोसेसर. सो क्वेरी प्रोसेसर के अंदर देखा जाए तो आपका इतने सारे कंपोनेंट है. शॉर्ट में आपको बताना है क्योंकि 10 मार्क के लिए सवाल पूछना है. अगर हर एक के ऊपर आप पूरा एक 2 पैराग्राफ लिखने चले गए तो आंसर बहुत बड़ा हो जाएगा. ओके सो एक तो पहले ये डायग्राम बनाना है. डायग्राम बनाने के बाद आपको 2 से 3 पेज के अंदर ये सब डायग्राम को समअप करना है. ओके सो टिल नाउ वी हैव डिफाइंड द डिफरेंट यूजर, टिल नाउ वी हैव डिफाइंड द डिफरेंट टूल्स. ओके सो ऑटोमेटिकली यही एक पेज ले चुका होगा आपका अब तक. ओके सो नेक्स्ट इज फ्लो हम समझने की कोशिश करते हैं. ओके सो व्हेनेवर यू राइट डाउन अ जावा प्रोग्राम, ओके विल टेक द एग्जांपल ऑफ जावा बिकॉज़ वी आर स्टडीइंग करंटली द जावा. So application program you can write down in Java. Okay, once you write down the Java का extension क्या होता है? What is the extension of Java? Program आप लिखते हो, what is the general extension of Java? Java. .java. So we write down hello.java, calc.java, जो भी हमने लिखा था प्रोग्राम. So we write down .java extension और उसको सेव करते हैं. सेव करने के बाद we have to perform the next step which is called as compile. Okay, so we generally perform the Java C compile, right? सो जावा सी हम करते हैं ताकि वो प्रोग्राम को हम क्या कर सके, कहाँ से किस में कन्वर्ट कर सके. .java से किस में कन्वर्ट कर पाते हैं हम लोग? .class. Okay, so that step is done by the compiler. So compiler will do what? जो आपका Java language है, it converts that Java language into machine level language program. Okay, तो यानी normal language को machine language में convert करता है. So that step is called as compilation. And linking का मतलब क्या होता है कि अगर आपको जो machine language program जो आपका बना है और जो आपका पहले जो आपने प्रोग्राम लिखा था उनके बीच में लिंकेज होना चाहिए ताकि अगर आप वहाँ पे कुछ चेंज करें तो वहाँ पे वो दिखना चाहिए. So there is a linker also in that in some language as well. Okay, so compiler and linker जो होता है आपका, it compiles and links your interface that you have built. Okay, so कंपाइल करने के बाद एप्लीकेशन प्रोग्राम या कोई भी प्रोग्राम जब आपका कंपाइल होता है उसके बाद वो क्या बनता है? क्लास. क्लास को जनरली वी आल्सो कॉल्ड एज द ऑब्जेक्ट कोड. बराबर ना? वी आल्सो कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट. सो क्लास को कंपाइल किया हमने. क्लास को कंपाइल करने के बाद either you can call it as a byte code, you can call it as a object code, you can also call it as a class code. Okay, so it depends on you. या machine language code या जो भी बोलो. So application program object code जो यहाँ पे लिखा हुआ है, it is nothing but the class that is being generated. So hello.class जो है, that is nothing but the object code of that particular program. Okay, so compile करने के बाद next is called as application program code. Is it clear? यहाँ तक समझ में आ गया? ये स्टेप समझ में आ गया आपको? आपने एप्लीकेशन प्रोग्राम लिखा के बाद आपको पहले उसको कंपाइल करना है. कंपाइल करने के बाद नेचुरली यू हैव टू क्रिएट द मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम. ओके, सो मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम इज नथिंग बट द ऑब्जेक्ट कोड. सो ऑब्जेक्ट कोड कब मिलेगा? जब तक आपका प्रोग्राम कंपाइल नहीं होगा. अगर कंपाइल नहीं हुआ इसका मतलब कुछ एरर होगा. ओके, डन विद दैट पार्ट. यहाँ तक आने के बाद
क्या होगा, यही ये जो पार्ट है विच इज द प्रोग्राम कोड और या ऑब्जेक्ट कोड, ये ऑब्जेक्ट कोड शुड बी मेड अवेलेबल टू द नाइव यूजर। यानी नाइव यूजर को आप प्रोग्राम, जावा का प्रोग्राम नहीं दोगे, आप जो कंपाइल किया हुआ कोड है वो कोड दोगे आप, ओके, जिससे क्या होगा, सिर्फ उसको रन करना है और उसको आउटपुट मिल जाएगा। ओके, तो बेसिकली आपको उसको ऑब्जेक्ट कोड देना है। अगर आपको याद होगा, आई हैव सेड कि जावा इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है कि इट डज नॉट ओनली वर्क ऑन विंडोज, इट कैन बी आल्सो वर्क ऑन लिनक्स ऑल्सो, इट कैन वर्क ऑन मैक ऑल्सो। वो कैसे पॉसिबल है, आपको सिर्फ ऑब्जेक्ट कोड जो है वो आपको ट्रांसफर करना ऑन डिफरेंट मशीन। तो सिमिलरली यहाँ पे आपका एप्लीकेशन प्रोग्राम जो आपने लिखा है उसको कंपाइल करने के बाद आपको सिर्फ क्या करना है, एप्लीकेशन प्रोग्राम का जो कोड है या ऑब्जेक्ट कोड जो है आपका, यानी डॉट क्लास फाइल जो उसको रन करता है, और रन करते ही उसको क्या मिल जाएगा, एप्लीकेशन इंटरफेस मिल जाएगा। ओके, सो ही डोंट हैव टू हैव द प्रोग्राम इनटू इट, ही जस्ट नीड टू हैव द ऑब्जेक्ट कोड। समझ में आया यहाँ तक? इज इट क्लियर? Yes. Yes. Yes, sir. Can someone tell me the time, exact time right now? 10:41. Okay, so we have got 4 10:41. minutes. We have got just 4 minutes. Okay, so I will just do the fast forward part. Next is we have a query. Okay, so query जो है आपका, वो query में there are 4 different types. One is called as a DML, second is called as a DCL, third we have DDL. Okay, ये सब तो पढ़ा है ना, हमने SQL में पढ़ा था, Introduction to SQL. So जो query tools यहाँ पे आप देख रहे हो, तो sophisticated user are able to write down the different queries. So generally जो query support करती है sophisticated user को, वो DML query है और साथ में DQL भी है। Okay, earlier जो division था, जो ये क्योंकि book जो है वो पुरानी book है, okay, course के अंदर, so DQL is nothing but these were the query which were also be included in DML, यानी जो select query थी that was first included in the DML। पहले जो SQL था वो सिर्फ 2 ही कैटेगरी में डिवाइड होती थी, एक जो लैंग्वेज है वो DDL बोला जाता था, एक को DML बोला जाता था। ओके, सो DML इज नथिंग बट द मैनिपुलेशन लैंग्वेज एंड द सेकंड वाज कॉल्ड एज अ डेफिनेशन लैंग्वेज। लेटर ऑन जैसे जैसे आपका बढ़ते चला गया, आज के टाइम पे वी हैव गॉट 4 डिफरेंट लैंग्वेजेस, यानी ऐसा कुछ नहीं कि आपकी लैंग्वेज बढ़ गई है, उसके अंदर मैनिपुलेशन का कुछ पार्ट जो है उसको सेपरेट कर दिया गया है। सो क्वेरी लिखने के लिए आप DQL यूज करते हैं। ओके, समझ में आया? सो इसमें जो स्पेशल जो DML में पहले सिलेक्ट क्वेरी जो था वो DML में होता था, अब जो है वो सिलेक्ट क्वेरी हैज बीन पुश्ड इनटू DQL लैंग्वेज। सो दैट इज व्हाई वी कैन नॉट राइट डाउन, अभी आज के जमाने में हम वहाँ पे DML क्वेरी नहीं लिख सकते, सिर्फ और सिर्फ DML क्वेरी नहीं लिख सकते, बिकॉज इट आल्सो सपोर्ट्स द DQL क्वेरी एज वेल। ओके, सो अगर आप डायग्राम बना रहे हो, जस्ट राइट डाउन DML क्वेरी प्लस DQL क्वेरीज, ओके, ओवर देयर। इज इट क्लियर? सो जो सोफिस्टिकेटेड यूजर है वो डेटा मैनिपुलेट कर सकता है या डेटा को पे क्वेरी करके इंफॉर्मेशन निकाल सकता है। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर क्या करेगा, वो तो ये काम कर भी सकता है और साथ में इट कैन परफॉर्म द DDL ऑपरेशन एज वेल। DDL का फुल फॉर्म क्या है? डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, यानी टेबल को डिजाइन करना, टेबल को बनाना, डेटाबेस को बनाना, ये सब काम जो है वो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर कर पाएगा, उसके अलावा और कोई भी यूजर नहीं कर पाएगा। So जो DDL है, that DDL is written down by that DDL tool is only used by the database administrator. Plus, it does not use only DDL; it can also use DML as well as DQL. Is it clear? Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. DML क्वेरी लिखने के बाद ये क्वेरी को आपको कंपाइल करना पड़ेगा। जैसे आपने प्रोग्राम लिखा है, प्रोग्राम हर प्रोग्राम के बाद आपको कंपाइल करना पड़ता है, सिमिलरली क्वेरी को भी आपको कंपाइल करना पड़ता है। सो क्वेरी गेट्स कंपाइल्ड, ओके, query gets compiled. After compilation it goes to a query evaluation engine. Query evaluation engine क्या करेगा, it will check कि आपने जो query लिखा है वो query रन हो रही है कि नहीं, ओके, या उसका कुछ आउटपुट आ रहा है कि नहीं, या उसका कॉस्ट क्या पड़ रहा है। ओके, एवरी query has the different cost to it. ओके, तो ये सारा कुछ जो evaluation होता है वो query evaluation engine पे होता है। ओके, query evaluation engine किस बेसिस पे query evaluate करेगा, वो query evaluate करता है with the help of buffer manager, file manager, authorization एंड इंटीग्रिटी मैनेजर एंड ट्रांजैक्शन मैनेजर। सो ये सारे मैनेजर जो है वो सेकंड कैटेगरी में आ जाते हैं, व्हिच इज कॉल्ड एज स्टोरेज मैनेजर, वो स्टोरेज मैनेजर में आते हैं। आई थिंक मेरे ख्याल से टाइम हो चुका है, विल जस्ट ट्राई टू कवर दिस पार्ट इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, नेक्स्ट क्लास में विल जस्ट ट्राई टू कवर अप दिस डायग्राम। ज्यादा कुछ नहीं है वैसे बताने के लिए, हार्डली 5 मिनट लगेगा समझाने के लिए, बट स्टिल आपका टाइम जाएगा। और नेक्स्ट क्लास है ना आपका अभी, व्हिच इज योर नेक्स्ट क्लास बाय द वे? Math. Maths. Okay. Maths. So I don't want to disturb you in that class, so I'm sorry for taking your extra time. Okay, now so किसी को कोई डाउट है, कुछ समझने में कोई दिक्कत आ रही है, ऐसा कुछ है अभी तक?
आज का लेक्चर समझ में आ गया? की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर समझ में आया आपको? Yes. Okay, Yes, we'll sir. just check out the syllabus copy कि कितना पहले मॉड्यूल में से कुछ और बच तो नहीं ना गया है. So we'll just check it out. Yeah. So first module में first we need to have the introduction. Okay. First we have done the introduction part. Introduction हो गया. Then characteristic of database ये भी हमने कर लिया. Okay. Then file system versus database system ये भी हमने कर लिया. Okay. We have drawn the difference का table हमने बनाया था. Okay. Data abstraction and independence करने समझने के लिए हमने वो 3 layer का schema पढ़ा था, which was called as what was the 3 layer schema? View level. Second level was called as Logical. and the last one was called as a Logical level. third one was called as a physical level. तो ये so ये तीनों स्कीमा को अगर आपको समझाना है तो आपको डेटाबेस एब्स्ट्रैक्शन या डेटा इंडिपेंडेंस अगर आपको समझाना है तो आपको 3 स्कीमा आर्किटेक्चर आपको वहाँ पे समझाना पड़ेगा. नेक्स्ट वी हैव डीबीएमएस सिस्टम आर्किटेक्चर. डीबीएमएस सिस्टम आर्किटेक्चर जो आज आर्किटेक्चर हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज डीबीएमएस सिस्टम आर्किटेक्चर. बट एग्जाम में कभी-कभी वो डीबीएमएस आर्किटेक्चर भी पूछते हैं. इफ दे जस्ट आस्क यू द डीबीएमएस आर्किटेक्चर, इन दैट केस यू हैव टू एक्सप्लेन विद 2 टायर आर्किटेक्चर एंड 3 टायर आर्किटेक्चर. अगर वहाँ पे बीच में सिस्टम आ जाता है, so you have to give the overall system का architecture. Overall system का architecture यानी जो आज जो हम architecture पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं. And finally database administrator कौन हो? थोड़ा explanation बच गया, which we'll just try to cover up in the next class. Okay. And also be prepared on that day. I will be asking you some कोई टेस्ट लेने का देखते हैं, अटेम्प्ट करते हैं कैसे पॉसिबल है यहाँ पे फर्स्ट मॉड्यूल से. सो प्लीज बी प्रिपेयर्ड, प्लीज बी ऑन टाइम. सो जो लेट ज्वाइन कर रहे हैं प्लीज मेक श्योर कि आप उस दिन टाइम पे आओ. नेक्स्ट क्लास आई थिंक ऑन मंडे. ओके. सो क्विज रखना है, क्या रखना है, आई विल जस्ट आस्क इन द डिपार्टमेंट कि शुड आई कीप अ टेस्ट ऑन Moodle. आपको Moodle का एक्सेस मिला है? हैव यू गॉट द एक्सेस टू द Moodle? ओके सो फाइन. सो मंडे तक मैं आपको क्लैरिटी देता हूँ उसका क्या करना है. अगर मंडे को पॉसिबल नहीं हो तो आई विल बी टेकिंग द टेस्ट ऑन सम अदर डे. सो हर एक मॉड्यूल का व्हेन वी ट्राई टू एंड इट विल जस्ट ट्राई टू टेक सम सॉर्ट ऑफ टेस्ट आउट ऑफ इट. ओके. ताकि पता चले कि वर्चुअली अगर आपको कुछ चीज समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, सिर्फ क्योंकि कुछ ही बच्चों की यहाँ तक आवाज पहुंच पाती है, बाकी तो सब इतने शांत बैठे हैं कि वो है कि नहीं है क्लास में वो भी पता नहीं. ओके फाइन. थैंक यू गाइस. थैंक यू सो मच. सॉरी फॉर टेकिंग एक्स्ट्रा 3 minutes. यू कैन लीव नाउ. सर गूगल फॉर्म्स पे ले सकते हैं ना?